Hello friends, welcome to my channel Learn with Kissa. My name is Kissa Rizvi. I am going to start with measures of central tendency. There are different ways of measuring central tendency of statistical data are mean, median and mode. Mean, median and mode. So today we are going to learn about mean. Later on we will move on median and mode. What is mean? The mean is the average of the numbers. It is easy to calculate. Add up all the numbers, then divided by how many numbers there are. In other words, it is the sum divided by the count. Any statistical series, there can be three types. First, individual series. Second, discrete series. Third, continuous. Series. So, in individual series, a single set of number is given like 0, 1, 2, 10, 100, 20, any numbers. In discrete series, frequency along with class interval is given in the question, but the classes will be specific. In continuous series, you will get a range like 0 to 10, 10 to 20. You will have a class interval in which you have to find out the mid value. First we start with find arithmetic mean in individual series. In individual series some numbers are given, no frequency is given. तो हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 5 numbers are given, no frequency is given. Write down the formula of arithmetic mean in individual series. AM equals to sigma x upon small n. Small n means total number of observation. X is a series. The individual value of a series is given. Sigma x means total value of observation. अब नंबर्स का सम कर लेंगे. Sum of all observation. Two plus 4 plus 6 plus 8 plus 10. इन सब का हम लोग सम कर लेंगे तो 30 आ जाएगा. 30 is represented as sigma x. Total number of observation. Small n. 1, 2, 3, 4, 5. 5 numbers are given. फॉर्मूला लिखेंगे AM का सिग्मा x अपॉन स्मॉल n. सिग्मा x इक्वल्स टू 30, स्मॉल n इक्वल्स टू 5. डिवाइड कर लेंगे. 5 × 5
5 6 या 30, 6 आंसर. Find arithmetic mean in discrete series. In discrete series, frequency along with class interval is given in the question. तो हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं. मार्क्स और फ्रीक्वेंसी. मार्क्स ले लेते हैं हम लोग. 5 10 15 20 25 30 35. फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं हम लोग 1 2 5 6 3 1. अर्थमेटिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला होता है AM इक्वल्स टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f. हम लोग एक कॉलम और फॉर्म कर लेंगे fx का. हम लोग fx कैसे निकालेंगे? यू हैव टू मल्टीप्लाई ईच रिस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशन इनटू each frequency. 5 multiplied by 1 5, 10 multiplied by 2 20. हम लोग मल्टीप्लाई करते चलेंगे. 75 12 20 by 7 5 30 into 2 60 और 31. उसके बाद हम लोग fx को सम कर लेंगे और इधर फ्रीक्वेंसी का सम कर लेंगे. इन सब को हम लोग सम करते हैं. 3 20. इन सब का हम लोग सम करेंगे. 5 10 20 390. ये हम लोग का सम करने पे ये आया. अब फॉर्मूला होता है AM का सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f. fx का फॉर्मूला होता है fx हम लोग का निकला 390 और सिग्मा निकला हम लोग का 20. अब हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे. 0 में से 0 गया, 0 में से 0 कट हो गया. 2 1 2 2 1 2 2 9 18.5. आंसर आएगा 19.5. हम लोग को मार्क्स गिवन होंगे. क्लास इंटरवल हम लोग को मार्क्स में, हाइट में, एज में हम लोग को दिए रहते हैं क्लास इंटरवल. फिर हम लोग को फ्रीक्वेंसी दी रहेगी. fx हम लोग को निकालना पड़ेगा. हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 into 1 10 into 20. मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला लिखेंगे और यू विल गेट अ आंसर. फाइंड अर्थमेटिक मीन इन कंटिन्यूअस सीरीज. हम लोगों ने एक क्वेश्चन ले लिया कंटिन्यूअस सीरीज का जिसमें मार्क्स दिए रेंज में 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50. फ्रीक्वेंसी दी हुई है. सो इज इट पॉसिबल टू मल्टीप्लाई ईच एंड एवरीथिंग? नो. So what we do? We find out the mid value. हम लोग एक कॉलम फॉर्म कर लेंगे मिड वैल्यू का. मार्केट x. मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. सो 10 0 plus 10 divided by 2. 10 plus 0 plus 10 10 upon 2. 2 1 से 2 2 5 से 10. You will get, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 5. 10 plus 20 divided by 2. 10 plus 20 30 divided by 2. 2 1 से 2
50। ऐसे ही करके हम लोग मिड वैल्यू निकाल लेंगे। 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2 25, 30 + 40 डिवाइडेड बाई 2 35, 40 + 50 डिवाइडेड बाई 2 45। मिड वैल्यू निकल आई। अब हम लोग एक कॉलम और फॉर्म कर लेंगे fx का, x और fx का कॉलम फॉर्म कर लेंगे। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 × 5 40, 14 × 15 2 1 0, 13 × 25 3 25, 10 × 35 and 5 × 45 2 to 5। अब हम लोग fx को सम कर लेंगे। सम कर लेते हैं। 1150। फ्रीक्वेंसी को भी हम लोग कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी को ऐड करने पे क्या आ रहा है 50। ठीक है। अब फाइंड अरिथमेटिक मीन इन कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला होता है am सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सिग्मा fx सब लोग का निकला 1150 और सिग्मा f हम लोग का निकला 50। इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो हम लोग का am निकल आएगा। तो हम लोग का am 11/50/50, इसको हम लोग डिवाइड कर दिया तो 23 आ गया आंसर। सो कंटिन्यूस सीरीज में मार्क्स दिए रहते हैं, रेंज में फ्रीक्वेंसी दी रहती है। हम लोगों को मिड वैल्यू निकालनी रहती है। मिड वैल्यू निकालते हैं हम लोग कैसे, अपर लिमिट्स प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। हम लोग मिड वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद fx का एक कॉलम हम लोग फॉर्म करते हैं जिसमें हम लोग मार्क्स x को और f को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 8 × 5 मल्टीप्लाई करके इसके बाद हम लोग सम कर लेते हैं, फॉर्मूला पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, यू विल गेट द आंसर।